حضور علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا اور گھر پہ تشریف لائے تو اما جان خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ خدیجہ میں نے اللہ کا فرشتہ دیکھا اور میں اس کو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ آپ اس کو اب بھی دیکھ رہے؟ فرمایا ہاں۔ تو چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک پڑھے لکھے گھرانے کی خاتون تھی، آپ کے چچا کا بیٹا حضرت ورقہ بن نوفل یہ بہت بڑے عالم تھے، تو آپ کو بہت سا علم تھا فرشتوں کے متعلق، انبیاء کے متعلق آپ جانتی تھی۔ تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ آپ میرے کمرے میں آئیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمرے میں قدم رکھا تو اماں خدیجہ نے پوچھا جو فرشتہ تم نے غار حرا میں دیکھا اور باہر کے کمرے میں دیکھا کیا وہ میرے کمرے میں دکھ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں وہ مجھے اب بھی نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا، اپنے بالوں کو کھلا کر دیا۔ بہت توجہ سے سننے کی بات ہے میری بہنوں، جب سر سے آپ نے دوپٹہ ہٹایا اور دوپٹہ آپ نے اپنے کندھے پہ رکھا، جب آپ کا سر کھل گیا، کس کا؟ خدیجۃ الکبریٰ کا۔ کس کا؟ سیدہ فاطمہ کی امی کا۔ کس کا؟ آخری نبی کی پہلی بیوی کا۔ کس کا؟ جس کو عرش سے خدا سلام کرتا ہے اس خدیجہ کا۔ دوپٹہ سر سے کاندھے پر آیا تو اماں خدیجہ نے پوچھا میرے سرتاج کیا جو فرشتہ تمہیں تھوڑی دیر پہلے تک دکھ رہا تھا وہ اب بھی دکھ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا خدیجہ نہیں، اب وہ فرشتہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اب وہ فرشتے کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جناب خدیجہ نے کہا مبارک ہو، جو فرشتہ جناب موسیٰ کے پاس آتا تھا، جو فرشتہ جناب ابراہیم کے پاس آتا تھا، وہی فرشتہ آپ کے پاس بھی آیا، آپ کے پاس کوئی شیطان نہیں آیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کیوں عرض کیا؟ کیونکہ خدیجہ کا یہ ماننا تھا کہ عورت کے سر پہ جب تک دوپٹہ رہتا ہے وہیں تک رحمت کا فرشتہ موجود رہتا ہے، جب عورت اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو رحمت کا فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جب نبی کے گھر میں، سید الانبیاء کے گھر میں عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹ جائے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، تو ہمارے گھر میں عورتیں جو کھلے سر پھرتی ہے، کھلے سر کھانا پکاتی ہے، کھلے سر اللہ اکبر سارے کام انجام دیتی ہے، پھر رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ جب نبی کے گھر سے سر سے دوپٹہ ہٹنے پر فرشتے چلے جاتے ہیں تو ہمارے گھر میں فرشتے کیسے آئیں گے؟ اور جب رحمت کے فرشتے آئیں گے نہیں تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ پھر آپ رو رہی ہیں میرا شوہر اتنی محنت کرتا ہے کماتا ہے برکت نہیں ہوتی۔ برکت کیوں ہوگی؟ بے برکتی تو تیری وجہ سے ہے، تو نے سر کا دوپٹہ گلے میں لٹکایا تو اس وقت تیرے گھر میں برکت ہوگی کیسے؟ اور سن لو آپ تعویذ کے انبار گھر میں لگا لو کبھی برکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نحوست تو تمہارے کھلے سر کی وجہ سے ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ صاحب روح البیان نے لکھا ہے، اگر یہ بات لکھی نہ ہوتی تو میرے اندر بیان کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ نبی کی موجودگی میں عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو آگ میں ڈالنے کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے منجنیق بنائی تھی۔ منجنیق آپ سمجھتی ہیں، جب پہلے دور میں قلعوں پہ حملے ہوتے تھے تو منجنیق کے ذریعے سے پتھر پھینکے جاتے تھے، انہوں نے منجنیق بنائی تھی۔ منجنیق وہ تھی کہ آگے پائپ رہتا تھا اور ایک رسہ رہتا تھا، رسہ کھینچ کر کے چھوڑتے تھے تو وہ جا کے پائپ کو لگتا تھا، اور پائپ کے اوپر جو پتھر ہوتا تھا وہ جا کر کے قلعوں کو لگتا تھا۔ تو سب سے پہلے منجنیق بنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی آگ کا علاوہ تیار کیا کہ وہ آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے کیسے؟ تو انہوں نے منجنیق بنائی۔ تو منجنیق بنا کر کے وہ کئی دنوں سے پریکٹس کر رہے تھے۔
इस तरह रस्सा खींचेंगे, छूटेगा तो इब्राहिम की पीठ को जाके लगेगा, फिर इब्राहिम जो है वो आग में चला जाएगा। लेकिन जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार कर उन लोगों ने मंजनीक पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया और रस्सा खींचा, तो अब रस्सा उनसे खिंचाता नहीं था। क्यों नहीं खिंचाता था? इसलिए कि फरिश्ते रोकर कहते, अल्लाह तेरा इब्राहिम तेरा नाम लेवा, अब वो आग में डाल दिया जाएगा, हम उसकी मदद के लिए जाना चाहते हैं। तो फरिश्ते मदद के लिए आ गए। इधर से नमरूद वाले रस्सा खींचते, उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते, तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदी नाकाम रहे, तो वो रस्सा खींच नहीं पा रहे थे। अब वो हैरान हो गए, कई दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई दिनों से मश्क कर रहे हैं रस्सा खींचने की, अभी थोड़ी देर पहले तक के रस्सा खींच रहा था आसानी से, अब नहीं खींचता। उस वक्त एक बुढ़ा सर पे कंबल डालकर आया और उस बुढ़े ने कहा कि रस्सा क्यों नहीं खींचता? उसने उन लोगों ने कहा, ऐ बुजुर्ग पता नहीं क्यों नहीं खींचता। तो उस वक्त उस बुढ़े ने कहा, एक काम करो, 10-12 औरतों को बुला करके लाओ। 10-12 औरतें बुलाकर लाई गई। उस वक्त उसने कहा, नमरूदी उस औरतों से उस बुढ़े ने कहा, अपने सर से दुपट्टा हटा लो और अपने गले में लटका लो। तो उन लोगों ने दुपट्टा जैसे ही हटाया, वो रस्सा खींच गया। वो रस्सा क्यों खींचा? इसलिए कि जब औरत सर से दुपट्टा हटा देती है तो रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद के जो रहमत के फरिश्ते आए थे, वो दुपट्टा सर से हटने की वजह से चले गए। हालांकि वहां अल्लाह का पैगंबर मौजूद है, पैगंबर की मौजूदगी के बावजूद अगर औरतें सर से दुपट्टा हटा दें तो रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। तो क्या तुम्हारे घर में कोई पैगंबर है? कोई तुम्हारे घर में कोई सहाबी है? तुम्हारे घर में कोई वली है? नादानो, तुम्हारी तकलीफों का इलाज सिर्फ तुम्हारे पर्दे में है। पर्दे में रहकर देखो, फिर मेरे अल्लाह की कुदरत देखना, उसके करम की बारिशें देखना। सुनो, अल्लाह अकबर। जिनके घरों में बरकतों का नुज़ूल हुआ, जिनके घर से कायनात को खैरात मिली, जिनके घर से विलायत तकसीम हुई, जिनके घर से इमामत तकसीम हुई, जिनके घर से नेमतें तकसीम हुई, वो घर सैयदा फातिमा का घर है। सैयदा फातिमा की जिंदगी देख लो। इमाम हसन मुज्तबा से किसी ने कहा, हसन तेरी मां बड़ी पाकीज़ा थी। इमाम हसन ने कहा, तूने सच कहा। जिस दिन मेरी मां का विसाल हुआ, मैं 6-7 साल का बच्चा था, उसके बावजूद भी मैंने अपनी मां के सर के बालों को कभी नहीं देखा। जो माएं अपने नन्हे बच्चों से भी अपने सर के बालों को छुपाती थी, उन घरों से खैरात तकसीम होती थी। और जो माएं अजनबी मर्दों को भी सर दिखाती है, फिर उस घर से खैरात नहीं बटती, उस घर में खैरात मांगी जाती है। कमा कर भी परेशान हो, सरों पे दुपट्टे नहीं। औरतें घर में रहती है तो यूं समझती है कि अब कौन आने वाला, और सगा भाई तो है, देवर तो है, बेटा तो है। सोचो, क्या देवर से पर्दा फर्ज नहीं? क्या बहनों से पर्दा फर्ज नहीं? और माए कितनी मुकद्दस थी, जो बेटे से भी सर के बालों को छुपाती थी। कितना मशहूर सा वो वाकया है कि एक मर्तबा अहले दिल्ली ने बाबा फरीद से कहा, फरीद बारिश बंद हो गई बाबा साहब, लोगों ने बहुत दुआएं की, बारिश नहीं होती, आप दुआ कर दें। बाबा साहब ने कपड़े का टुकड़ा निकाला, हवा में लहराकर 4 जुमले भी नहीं कहे थे, बारान रहमत का नुज़ूल हुआ, दिल्ली जलथल हो गया। लोगों ने पूछा, बाबा साहब इस कपड़े के टुकड़े की करामत क्या है? फरमाया, ये मेरी अम्मी के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने ये कहा, मेरे अल्लाह, जिस माँ के सर के बालों को कभी उसके बेटे ने भी नहीं देखा, उसी माँ के सदके बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। तवज्जो करें, औरतों की हया का ये आलम था। आज औरतें इतनी बेगैरत हो गई, बड़ी माजरत के साथ, कि औरतें मसाज कराने के लिए अब जो है वो मसाज गाहों में जाती है, बाल बनाने के लिए दुकानों पर जाती है, ब्यूटी पार्लरों को मेरी बहनें आबाद कर रही है, और बगल तक मेहंदी लगाने के लिए काफिर लड़कों के पास जा रही है। कहां वो औरतें जो अपने बच्चों से भी सर के बालों को छुपाती थी, और कहां ये औरतें कि जो बगल तक खोलकर बैठे
मर्दों के सामने, वो भी काफिर मर्दों के सामने मेहंदी लगाने के लिए। अरे नादान, भाई बालिग हो गया तो बहन ने अपनी उंगली भाई को अपने बदन से टच करने की इजाजत नहीं दी। औरतों की गैरत कहिए, सगा भाई बालिग होने के बाद कौम की औरतों को हाथ नहीं लगा सकता था। अगर भाई को बहन को किसी वक्त जगाने की नौबत आई तो भाई लकड़ी ढूंढता है और लकड़ी ढूंढ करके बहन को जगाता है, बहन उठ, इसलिए कि हमारे घर में आग लग गई है तो तेरी जान बचाना चाहता हूं। सोचो, आग के हादसे के वक्त भी जवान भाई अपनी बहन के जिस्म को नहीं छूता। और मेरी बहनों, तुम्हें क्या हो गया कि तुम मेहंदी के नाम पर काफिर लड़कों के हाथ में हाथ दे रही हो, चूड़ियां पहनने के नाम पर काफिर लड़कों के हाथ में अपने हाथ को दे रही हो, बाल कटवाने के नाम पर। क्या तुम अल्लाह से कयामत तक की जिंदगी लिखा कर लाई हो? नादानो सुनो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक दिन जिंदगी का ये चिराग गुल होगा और बहुत जल्दी गुल होगा। मौत की तलवार हर वक्त सर पे लटक रही है। और ये मत सोचना कि बुढ़ापे में मौत आएगी, अभी तो तुम्हारे हुस्न पर बुढ़ापे की झुर्रियां बाकी है। सूरज हर वक्त सर पर नहीं रहता, सूरज भी थोड़े देर के बाद गुरूब होता है। मेरी बहन, जब सूरज का शबाब ढल जाता है तो तेरा शबाब कितने दिन तक रहेगा? गुल मुस्कुराकर मुरझा जाते तो तेरा हुस्न कितने दिन तक मुस्कुराएगा? अपने हुस्न का गलत इस्तेमाल करके अल्लाह को नाराज करने वाली मेरी बहन, आज आ सुन्नी दावत इस्लामी के इस इज्तिमा में सच्ची तौबा कर ले। अल्लाह तुझे भी वक्त की राबिया बसरी बना देगा। आप सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे भी नफीसा मिस्री बना देगा। आ सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे भी अपने वक्त की उम्मुल जब्बार बना देगा। आ सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे अपने वक्त की उम्मुल खैर बना देगा। आ सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे अपने वक्त की उम्मुल वरा बना देगा। आ सच्ची तौबा कर ले, तू भी सैयदा ज़ैनब की कलेश बन जाएगी। सकीना तेरी जिंदगी पर नाज करेगी, सैयदा फातिमा को तुझ पर नाज होगा। आ सच्ची तौबा कर ले, ये दुनिया जी लगाने की जगह नहीं, ये दुनिया खत्म होगी, बहुत जल्द खत्म होगी। तूने अपनी मां का जनाजा उठते देखा, अपनी दादी का जनाजा उठते देखा, अपनी नानी का जनाजा उठते देखा, तूने कितनी औरतों का जनाजा उठते देखा, अपनी पड़ोसनों का जनाजा उठते देखा। मेरी बहन का तू इबरत हासिल नहीं करती, एक दिन तेरा भी जनाजा उठेगा, एक दिन तेरा भी जनाजा उठेगा और तेरे साथ कोई ना जाएगा, ना तेरा शौहर, ना तेरे बच्चे, ना तेरी सहेली, न तेरा माल, न तेरा मनाल। आजा आजा मेरी बहन, अल्लाह की रहमत की तरफ आ, रब की रहमत की तरफ रुजू कर। बस जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, अगर कोई सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसको बख्श देता है। ये मगरिब का वक्त तौबा की कबूलियत का टाइम है और तुम खुशनसीब हो, अभी थोड़ी देर में वो शख्सियत आने वाली है जिस शख्सियत के हाथों पर अंग्रेजों ने तौबा की, बिगड़े हुए लोगों ने तौबा की। यानी हमारे कायबे मोहतरम हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाएंगे। और याद रखना, यूं ही तौबा करो तो भी कबूल, लेकिन किसी अल्लाह वाले के हाथ पे तौबा करो तो जल्दी कबूल होती है। तो हजरत तशरीफ लाएंगे और आप लोगों को हजरत मुरीद करेंगे, दाखिल सिलसिला करेंगे। तो आप हजरत के हाथ पर तौबा करें, गौस पाक के वसीले से तौबा करें। 11वीं शरीफ का महीना भी चल रहा है, आप सब मुरीद हो जाएं, सच्ची तौबा करें, अल्लाह आपकी तौबा कबूल करेगा। बस अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए एक बात अर्ज करता हूं और खत्म करता हूं कि सच्ची तौबा किस मंजिल पर पहुंचाती। कभी कभी तौबा कराने वाला वही रह जाता है, तौबा करने वाले आगे बढ़ जाते। हां, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं दरिया की सैर को गया तो मैंने देखा एक लड़की अपने फ्रेंड के साथ, जिसके साथ वो नाजायज मोहब्बत करती थी, उसके साथ आई। उनके पास सितार था, सितार समझते होंगे जिस पर लोग म्यूजिक बजाते हैं, सितार था, शराब की सुराही थी और खाने पीने की चीजें। सुन्नून मिस्री बड़े खूबसूरत थे।
جب وہ دونوں شراب پینے لگے اور کھانے لگے اور ستار بجانے لگے تو سامنے ذوالنون کو بیٹھا ہوا دیکھ کر اس لڑکی نے کہا اے شخص لے تو بھی جام پی لے اور ہمارے ساتھ مستی میں شریک ہو جا. تو حضرت ذوالنون مصری نے کہا یہ ناپاک شراب کی مجھے ضرورت نہیں، اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر انتظام جنت میں کر رکھا ہے. شرابن طہورا، وہ پاکیزہ شراب ہے، اسے پیو تو نشہ ہوتا ہے، اس کو پیو تو عشق خدا و رسول کا نشہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو پیو تو انسان ڈولتا ہے، اسے پیو تو ڈولنے والا سنبھل جاتا ہے، اس کو پیو تو انسان گر جاتا ہے، اس کو گرا ہوا پیے تو اٹھ جاتا ہے. اس کی بڑی بات ہے جسے قرآن شرابن طہورا کہتا ہے.